Hello friends, myself Professor Bharat Basrani, and I'm happy to share a new video based on to watch its previous part, means first part. Must watch first part 1 and then you should go for part 2. I have prepared this MCQ series for the chapter called Sale or Conversion of a Firm into a Company. The subject is Financial Accounting, and this particular video will be very helpful for the students of FY BCom semester 1 English medium. So let us start our journey of MCQ part 2 related with sale or conversion of a firm into a company. So let's have the first MCQ on the screen. On sale or conversion of a firm, if a partner undertakes to make payment of a liability of a firm is debited to which account? Here, partner undertakes to make payment of liability of a firm, then in which account it will be debited? Let's have the option. First option is profit and loss account. Second one is realization account. Third is cash and bank account. The last one is partner's capital account. So in which account this amount, this liability, payment of liability will be debited? If it is paid by partner, the right answer is realization account. Next, on sale or conversion of a firm, realization account is debited with, let us see, realization account, which items will be debited at the time of sale or conversion of a firm. So let's see the options. All assets to be realized is the first option. Second option is all outside liabilities of the firm. Third option is cash received on sale of assets. Fourth option is any asset taken over by one of the partners. Now the question is, from these 4 points, which point will be debited to realization account? The right answer is all the assets to be realized will be debited to realization account, and all the outside liabilities of the firm will be credited. Next question, third MCQ. The balance sheet of a firm disclosed debtors and bad debt reserves at rupees 70,000 and rupees 5,000 respectively. So debtors are 70,000 and BDR, that is bad debt reserve, is 5,000. On conversion of a firm into a company, debtors are to be taken at 15% less. What would be debtors value for net assets calculation? So how we are going to value this point? That is very important. First, let us see the options. First option is 65,000. Second is 59,500. Third is 63,750, and fourth option is 55,250. So how exactly we are going to make its valuation, sir? We will focus at the main price of debtors. The main price of debtors is 70,000. At 70,000, we will calculate 15% less. Debtors will be calculated 15% less on its price, 70,000. So it will be 10,500. If you calculate 70,000 at 15%, it will be 10,500. So 70,000 minus 10,500, कितना आंसर आएगा सर? The right option is 5950. Option B is the right answer. Next point is on sale or conversion of a firm, which one of the following account should be prepared at the last? सेल और कन्वर्जन में आखिरी अकाउंट कौन सा होता है?
आप आखिरी अकाउंट कौन सा फ्रेम करेंगे? बेसिकली 3 अकाउंट्स फ्रेम किए जाते हैं, उसमें से आखिरी कौन सा होता है? विच इज द लास्ट वन? पहला है रियलाइजेशन अकाउंट, फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। थर्ड ऑप्शन इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फोर्थ ऑप्शन इज कैश अकाउंट। सो बेसिकली 3 अकाउंट फ्रेम करने होते हैं, रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल एंड कैश अकाउंट। तो सबसे आखिर में कौन सा बनता है सर? ऑब्वियसली कैश अकाउंट। So the right answer was option D, cash account. Next, 1/5 of 30,000 equity shares of rupees 10 each received by a firm against purchase consideration has been sold in the market at rupees 12 per share. The profit to be credited to realization account would be amounted to options. पहले देख लेते हैं क्या क्या है। 6,000, 24,000, 18,000 and 12,000 are the options. अब 1/5 30,000 इक्विटी शेयर्स जो है, इसका 1/5 पहले निकाल लेना है क्योंकि इतने बेचे गए हैं। तो 30,000 का दोस्तों 1/5 कितना होगा? 1/5 का मतलब होगा 20%। तो 30,000 का 20% निकालेंगे तो कितना होगा? 6,000। चलिए, तो 6,000 की ये जो शेयर, इसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है? 10। सो 6,000 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना हो गया? कॉस्ट प्राइस 60,000। हमें पड़ा है 60,000। इसको बेचा गया 12 रुपीज के हिसाब से। तो 6,000 मल्टीप्लाई बाय 12 कितना हो जाएगा? 72,000 हो जाएगा। सो 70,000 माइनस कॉस्ट प्राइस 60,000, तो क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। 60,000 में पड़ा, 72,000 में बेचा। यहाँ सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड भी कैलकुलेशन हो सकता है पर शेयर के हिसाब से। 12 माइनस 10 करेंगे, 2 रुपए का प्रॉफिट हुआ एक शेयर पे। 2 रुपीज मल्टीप्लाई बाय 6,000 शेयर्स बेचे, सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड हिसाब हो गया, प्रॉफिट हो रहा है। ये प्रॉफिट क्रेडिट होगा रियलाइजेशन अकाउंट से। कितना अमाउंट आएगा सर? 12,000। सो द राइट आंसर इज 12,000, ऑप्शन डी। रियलाइजेशन अकाउंट इज अ बेसिक पॉइंट है, बेसिक क्वेश्चन है, 11 12th के बेसिस वाला क्वेश्चन है, ये आना ही चाहिए। नॉमिनल अकाउंट है रियलाइजेशन अकाउंट, रियल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है, या रियल अकाउंट एज वेल एज पर्सनल अकाउंट है। रियलाइजेशन अकाउंट में हम एसेट्स बेच रहे हैं, उसमें से क्या रियलाइज हो रहा है? लायबिलिटी टेकन ओवर है तो उसमें से क्या मिल रहा है, क्या हो रहा है, किस तरीके से हिसाब किताब हो रहा है सर। तो इसमें से अल्टीमेटली हमें मिलता क्या? प्रॉफिट और लॉस ही हम फाइंड करने की कोशिश करते हैं, जो हम अल्टीमेटली पार्टनर्स पर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो ये किस स्वरूप का अकाउंट हो गया सर? इट्स अ नॉमिनल अकाउंट। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, नॉमिनल अकाउंट है रियलाइजेशन अकाउंट। Next, at the time of sale or conversion of firm into a company, balance of general reserve shown in the balance sheet is credited to। जो जनरल रिजर्व्स है, यानी कि रिजर्व से सरप्लस की जितनी भी बैलेंसेस है जो बैलेंस शीट में अवेलेबल है, उसको किस अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा? चलिए देखते हैं ऑप्शंस क्या है। रियलाइजेशन अकाउंट, कैश एंड बैंक अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो सही जवाब क्या होगा सर? इसे हम कहाँ दिखाएंगे? इसे हम दिखाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जो भी रिजर्व एंड सरप्लस है वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स में हम इसको क्रेडिट साइड पे इसके एंट्री करेंगे, उसमें बांट देंगे उनके रेशियो के हिसाब से, प्रॉफिट और लॉस के रेशियो के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। नेक्स्ट, पॉइंट 8, ऑन सेल और कन्वर्जन ऑफ फर्म द फाइनल बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट्स आर ट्रांसफर्ड टू। ऑन सेल और कन्वर्जन ऑफ अ फर्म द फाइनल बैलेंसेस ऑफ कैपिटल अकाउंट्स, यानी जो भी बैलेंसेस बच रही है कैपिटल अकाउंट में, उसे कहाँ ट्रांसफर किया जाएगा? कौन से अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा? रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, कैश और बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो सही जवाब क्या होगा सर? ऑप्शन बी, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट में कैपिटल अकाउंट की बैलेंसेस ट्रांसफर की जाएगी। नेक्स्ट, ऑन सेल और कन्वर्जन ऑफ अ फर्म द बैलेंस ऑफ प्रॉफिट and loss account appearing on the asset side of a balance sheet is transferred to। चलिए, तो कहाँ ट्रांसफर करेंगे? balances of profit and loss account appearing on the asset side of balance sheet। asset side की, बैलेंस शीट की asset side में अगर profit and loss account की
इंफॉर्मेशन है, अमाउंट है, तो उसे कहाँ ट्रांसफर करेंगे? ऑन द डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट में इसकी एंट्री होगी, ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट में इसकी एंट्री होगी, रिकॉर्ड करेंगे, ऑन द डेबिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इसकी रिकॉर्ड होगी, और ऑन द क्रेडिट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इसकी एंट्री होगी। कहाँ होगी? तो राइट आंसर क्या होगा सर? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट बैलेंस है ये, क्रेडिट नहीं, डेबिट बैलेंस है। तो इसको कहाँ दिखाना है सर? राइट आंसर आएगा ऑन द डेबिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इसकी एंट्री होगी। एसेट साइड पे मींस डेबिट साइड पे इसकी एंट्री होगी। चलिए, ऑन सेल और कन्वर्जन ऑफ अ फर्म, a partner paid rupees 700 for firm's realization expenses, which account will be debited? अब यहाँ पे पार्टनर ने पे किया है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, तो किस अकाउंट में इसको डेबिट किया जाएगा? ये जो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हैं, जिसे हम डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस भी कहते हैं, इसको कौन सी साइड पे, कौन से अकाउंट में इसको डेबिट किया जाएगा? कैश और बैंक अकाउंट में, रियलाइजेशन अकाउंट में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में? तो कौन से अकाउंट में इसे डेबिट किया जाएगा सर? राइट आंसर इज रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट होगा, और जिस पार्टनर ने पे किया है उसकी अकाउंट में, यानी कि पार्टनर्स अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट, नंबर 11, प्रॉफिट और लॉस ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट इज ट्रांसफर टू। रियलाइजेशन अकाउंट में जो भी प्रॉफिट या लॉस अगर अमाउंट आ रहा है, बैलेंस आ रहा है, तो उसको कहाँ ट्रांसफर किया जाएगा? पीएनएल अकाउंट में, बैलेंस शीट में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, या कैश बैंक अकाउंट में? कौन से अकाउंट में इसको ट्रांसफर किया जाएगा? रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज करने के बाद उसका जो भी बैलेंसेस आ रहा है, प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, उसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा, पार्टनर्स के बीच में वो प्रॉफिट या लॉस शेयर किया जाएगा। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लास्ट एमसीक्यू पे चलते हैं आज के इस वीडियो का। Which of the following is transferred to realization account? नीचे जो भी ऑप्शंस आपको दिए हैं उसमें से कौन सी चीज रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी, लिखी जाएगी? बैलेंस ऑफ कैश अकाउंट, क्या ये रियलाइजेशन अकाउंट में आता है? बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्या ये भी आता है रियलाइजेशन अकाउंट में? रिजर्व्स, कोई भी रिजर्व्स हो सकते हैं। अमाउंट रियलाइज्ड ऑन सेल ऑफ एसेट, तो इनमें से किसकी एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट में होगी? कोई भी एक ही होगी, सब तो होनी नहीं है। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, अमाउंट रियलाइज्ड ऑन सेल ऑफ एसेट, और लायबिलिटी से जुड़ी हुई एंट्री यहाँ आएगी। सिंपल पॉइंट है, बेसिक्स याद होगा तो इजी लगेगा दोस्तों। डोंट लाइक, इफ यू लाइक माय वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो to other friends. Thank you for watching my video till end.